Bismillahirrahmanirrahim. This is Miss Sidra Iqbal, Department of History and Arts, Division of Arts and Social Sciences, University of Education, Bank Road Campus, Lahore. Today I am here with the subject of Economic History of Pakistan for the program of Masters of History with the course code of HIST 4118. Our today's topic is agriculture development in Pakistan. As we all know that Pakistan is a agricultural country and the 68 to 70% population depended on agriculture and living in agriculture areas. So now we will learn about agricultural development in Pakistan. We divided we divided this topic into two parts. Today we will discuss the part 1 of the agricultural development in Pakistan. First of all, introduction, definition. Agriculture is the process of cultivation of land or soil for, for production purposes. एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन है, काश्त का एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ लैंड और सोइल जिसमें से पैदावार के मकसद के लिए उसमें काश्त की जाती है. एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स डेवलपमेंट. 48% of labor force is engaged directly with agriculture, so it is the main source of living or income of the major part of economy population. About 70% of population is relates to agriculture directly or indirectly. पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एग्रीकल्चर का एक वाइटल रोल है. 48% ऑफ लेबर फोर्स जो है वो डायरेक्टली इंगेज्ड है एग्रीकल्चर के साथ. सो इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ लिविंग और इनकम. मेजर एक पार्ट जो है उसकी इकोनॉमी पॉपुलेशन का, उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है. 70% ऑफ पॉपुलेशन इज रिलेट्स टू एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. 70% जो आबादी है उसका ताल्लुक है काश्तकारी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Agriculture is the major source of food of huge population of Pakistan. Agriculture is also the major source of provision of raw material to industrial sector of Pakistan. Its contribution toward GDP is about 25%, which is higher than contribution of any other sector. Following are the main points of importance of agriculture for Pakistan economy. Form of agriculture in Pakistan. Different forms of agriculture exist in Pakistan.
small scale subsistence farming. It is also known as domestic farming because such farming is carried on small scale. It is also known as domestic farming because such farming is carried on small scale and most of produce product is locally consumed and small surplus is exported. The farmer also keeps some cattle to get milk. Such type of farming is carried on. Cash crop farming, also called commercial farming and cash cropping, it is a type of farming in which cash crops are grown. Produced for the purpose of generating cash or money. The products are therefore intended to be marketed for profit. Cash crop farming. Cash crop farming, also called commercial farming and cash cropping, it is a type of farming in which cash crops are grown, produced for the purpose of generating cash or money. The products are therefore intended to be marketed for profit. The products are therefore intended to be marketed for profit. Natural and human factors affecting the production of crops. There are many factors, human or natural, which affecting the production of crops, like climate can हार्ड क्लाइमेट जो है वो काफ़ी किस्म की बाज़ुकात हवाएं इतनी तेज़ होती हैं कि फसल को गिरा देती हैं, सैलाब आ जाता है या ओले बरसते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी ने पैदावार जो है उसकी शरह को बढ़ाया भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ुकात जो केमिकल्स का इस्तेमाल है वो इसको ख़राब भी करता है. कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल यूज़ होता है वो इसकी शरह को बढ़ाता है. सॉइल, लेबर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. द अदर एंड मेन थिंग इज़ मार्केट डिस्टेंस. अगर मार्केट डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगर वो करीब है तो एक अच्छे मतलब आप बगैर पैसे लगाए जो अपनी प्रोडक्ट है उसको मार्केट के अंदर ले जा सकते हैं, वरना एक फार्मर जो है उसको अपनी प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाने में भी अलग से जो है वो खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो मार्केट का बंदा होता है वो फसलों से आकर नहीं लेके जाता प्रोडक्ट को मार्केट तक किसान ने पहुंचाना होता है. फैक्टर विच इफेक्ट लाइवस्टॉक फार्मिंग. क्लाइमेट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. क्लाइमेट में आप देख लें, शदीद गर्मी है, बारिशें हैं,
ठीक है, बारिशें एक हद तक फसल के लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा जो है वो उसको इफ़ेक्ट भी करती हैं। सैलाब आ जाए तो पूरी की पूरी फसलें तबाह हो जाती हैं, ज़लज़ला है, ठीक है। उसके बाद जो है लैंड कंडक्टिव फॉर कीपिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। लैंड जो कंडक्टिव होती है फॉर कीपिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, जो एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्म, फिश फार्म, फिर पोल्ट्री फार्म, ये सारे फार्म्स जो हैं। टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोड्यूस्ड, अब डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं एनिमल प्रोडक्शन की, जो कि डिफरेंट तौर पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब पोल्ट्री फार्म है, इस पे जो चिकन है इसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। डेयरी फार्म में भी अब टेक्नोलॉजीज़ भी मौजूद हैं, इंजेक्शंस लगा के दूध की पैदावार को बढ़ाया जाता है। इस तरह के डिफरेंट अब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, जो कि इफ़ेक्ट कर रही हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग को। डिजीज़ इको प्रैक्टिसेस और एंड प्रैक्टिसेस, डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं वो भी आकर मतलब इफ़ेक्ट करती हैं फार्म्स को भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध के अंदर टिड्डी दिल है, ठीक है, वो खड़ी की खड़ी फसल को खा जाती हैं, ठीक है, पूरे पौधे को ही, ऊपर से जो उसके पत्ते होते हैं उसको खा जाती है। और डिफरेंट किस्म की जो है डिजीज़ हैं। कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड मीट, अब बहुत ज़्यादा एक मतलब ख़ास तौर पे जो जानवरों की खुराक है वो अब डिफरेंट तरीक़ों से प्रोड्यूस की जाती है, ताकि जानवर जो है वो हेल्दी हो सके। उसको एक नेचुरल तरीके से अब कम प्रोड्यूस होने दिया जाता है, ताकि जानवर जो है वो मतलब मीट एक अच्छा मिकदार में प्रोड्यूस किया जा सके। उसके साथ साथ जो है एक इंजेक्शंस जो हैं वो क्रिएट किया गया है, जिसको जानवरों में पुट करके मिल्क की जो पैदावार है, जो मिकदार है, उसको बढ़ाया जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़, जो गवर्नमेंट का रोल है लाइफ स्टॉक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो किसी हद तक तो है लेकिन बहुत कम है। हालांकि गवर्नमेंट को जो है वो एक ख़ास किस्म का रोल अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पे ये डेयरी फार्मिंग जो है, यहाँ पर ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ये हमारी इकोनॉमी का 70% है। हमें जो हमारा जीडीपी है उसको 70% जो है ये कवर करता है, और हमारी 70% ही आवाम जो है वो इस पे डिपेंडेंट करती है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। डिस्क्राइब फिश फार्म, as we already talk about fish farm in livestock, also known as aquaculture. Fish farm, also known as aquaculture, the process of raising fish in an enclosed area for use in fishing industry। जो प्रोसेस है मछलियों को बढ़ाने का इनक्लोज्ड एरियाज़ में यूज़ इन फिशिंग इंडस्ट्री में वो यूज़ होता है। आप देख लें, अब तो वो उसके ऊपर बाड़ लगा के कपड़ा मतलब वो शीट चढ़ाई जाती है। ये पूरा जिस तरह से फॉर्म ये क्या है फसलें भी होती हैं, उसको कहते हैं कि अंडरग्राउंड। एंड a farm can be built on land or over naturally occurring bodies of water such as of an ocean shore। अब इस तरह से किया जाता है कि ज़मीन जो है उसकी खुदाई करके उसमें पानी डाल के उसको एक स्पेसिफिक तरीके से जो है वो फ़िश फार्मिंग के लिए बाकायदा तौर पे तैयार किया जाता है।
सम टाइम उसके ऊपर लोहे से वो पूरा जाल लगा के उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक शीट डाली जाती है। अब बहुत सारे जो है वो मतलब कुदरती तौर पे भी मौजूद हैं, जैसे कि सी शोर्स हैं, समंदर हैं, दरिया है, नहरें हैं, नदियाँ हैं, इनमें भी मछलियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, वो नेचुरली होती हैं। लेकिन आर्टिफिशली जो है, आर्टिफिशली तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकायदे तौर पे जो है इनक्लोज्ड एरियाज़ जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। Also known as aquaculture, the process of raising fish in an enclosed area for use in the fishing industry. A farm can be built on land or over naturally occurring bodies of water, such as of ocean shore. Now we are talk about marine, inland and farm fishes. Marine, ये अब डिफरेंट टाइप्स हैं फिशेस की। मेराइन फिशेस, एंगल फिश, बटरफ्लाई फिश, बैट फिश, शार्क्स, these four types are forming in the marine, called the marine fishes, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनलैंड फिशेस, इनलैंड फिशेस में टॉड, रोजीबाग, ब्लू पैराडाइज, बीटा, फॉर्म फिश, टॉड, ये फिशेस के नेम हैं। दीज फिशेस आर कॉल्ड मेराइन फिशेस, इनलैंड फिशेस एंड फॉर्म फिशेस। ये उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मेराइन फिशेस में एंजल फिश, बटरफ्लाई फिश, बैट फिश और शार्क। और इनलैंड जो है, इनलैंड फिशेस उसमें टॉड, रोजीबाब, ब्लू पैराडाइज, बीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज फार्म फिशेस, उसमें जो है वो टॉड फिश होती है। एग्रीकल्चर लैंडर्स मैप, अगर आप ये मैप देखें, पाकिस्तान का जो मैप बना हुआ है, इसमें हम देखेंगे साइड पे ग्रीन लाइन जो है वो फॉरेस्ट को डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान के इन खितों में फॉरेस्ट हैं। ये जो ऑरेंज है, स्मॉल ट्रीज और ओपन स्कब, जो दरख्त लगे हुए हैं। अब ये नोकंडी, लिस्पेला और मापिसाई, गवादर, खुशदार, दीर, इधर जो है वो इनकी शरह कम है। अब अगर आप इस्लामाबाद, सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, ये पंजाब के अंदर देखें तो एक बड़ी तादाद में ये मौजूद है। येलो लाइन जो है वो स्क्रब और डेजर्ट वेजिटेशन को शो कर रही है। ये लाइट पैरेट कलर जो है, ये राइस, यहाँ इन खितों में जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, सॉरी सखर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है लाहौर, सरगोदा वाली साइड आ जाती है। ये यहाँ पे जो है वो चावलों की फसल अच्छी होती है। ये लाइट ऑरेंज कलर जो है ये कर रहा है कि यहाँ गंदम जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद, सरगोदा, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, इंडस, सखर, कराची, हैदराबाद, कल्लात, कोयटा, डेरा गाजी, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में जो है वो गंदम की फसल बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें देखेंगे कि ये सीख जो है वो कॉटन पॉइंट्स हैं। जितने भी आप सरगोदा देखें, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, इंडस, ये जो सी का मार्क है, यहाँ पे कॉटन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास आ जाती है फ़िश प्रोसेसिंग। फ़िश प्रोसेसिंग किन इलाकों में जो है वो नेचुरली मौजूद है, हम देखेंगे कराची, औरमरा, पसनी, गवादर। स्पेसिफिकली ये 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे फ़िश फार्मिंग जो है वो नेचुरली पाई जाती है। I hope you can understand. Thank you so much, students. We will continue this lecture in the second part. If you have any question, you can ask me. Thank you so much.